In the previous session, that is yesterday, we have seen what is the pair of linear equations and how to find the solution by using graphical method. Now we are going to start with the exercise dependent on that particular topic, that is the graphical solution of the equations. We are going to start with exercise 3.1. In exercise 3.1, we are going to solve first and second question. For the first question, I am going to explain and revise the total concept of the graphical solution of given equations, which is already covered in 9th standard. The question number 1 is, I am reading it. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you. Isn't it interesting? Represents the situation algebraically and graphically. Yeah, this is the question which we have. Now we'll try to solve this. They have asked us to represent the given data algebraically and graphically. What does that mean? Algebraically means framing the linear equations dependent on the condition which are given in the example, and graphically means from those two equations form the graph, that is the lines, different lines for two equations which we are going to see. So सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, वहाँ पे बोला गया है आफ्ताब इज टेलिंग हिज डॉटर दैट 7 years बिफोर एंड 3 years आफ्टर. कॉमन सेंस से अगर मैंने आपको बोला राइट नाउ माई एज इज 25, आफ्टर 10 years व्हाट वुड बी माई एज, what are you going to do? You are going to add the number of years to my age, right? When I am asking my age after few years, that number of years would be added. And if I say my age is 25 and before 10 years, what is my age? So what are you going to do? You are going to subtract that number of years. The same logic we are going to apply. सबसे पहले हम उनकी प्रेजेंट एज कंसिडर कर लेते हैं. लेट द present age of Aftab be X years and his daughter be Y years. ये कंसिडर कर लिया हमें, X और Y years उनकी एज मान ली हमने. अब उन्होंने कंडीशन क्या दी है, बिफोर 7 years. जैसे मैंने आपको बोला है अगर बिफोर रहेगा तो हम प्रेजेंट एज में से उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो आफ्ताब की एज क्या बन जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज में से 7 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. आफ्ताब्स एज वुड बी, प्रेजेंट एज क्या है उसकी X, उसमें से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 7, X - 7 years. Any problem till now? Same we have to find his daughter's age. The daughter's age would be प्रेजेंट एज उसकी y है तो y - 7 years. अभी इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, उसके लिए जो कंडीशन दी गई है उन्होंने, what is the condition given to you before 7 years? I was 7 times as old as you were. That means I am writing over here I मतलब आफ्ताब कितना साल का था, ही वॉज 7 times एज दैट ऑफ डॉटर. ए इज इक्वल टू 7 times ऑफ डी. ए मतलब आफ्ताब इज 7 times ऑफ डॉटर. तो आफ्ताब की अभी की 7 साल पहले की एज कितनी, X - 7. X - 7 इज 7 times ऑफ डॉटर्स एज. डॉटर्स एज क्या है 7 साल पहले, Y - 7. वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस. हाउ टू सॉल्व दिस? दिस X - 7 वुड बी एज इट इज इक्वल टू 7 into Y is 7Y. And 7 into 7 is -49. Now what do you want to do? We have to rearrange them. We will take variables on one side and constants on one side. So I'll shift this 7y to this side and -7 to that side. -7 would go over there and 7y would come over here. So x as it is, 7y यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आने के बाद -7y is equal to ये -49 as it is, -49 as it is. This -7 while going over there it will be +7. X - 7y is equal to -49 plus 4 plus 7 is nothing but -42. Number it as first. ये हो गया अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन. सिर्फ एक दूसरी कंडीशन दी उसका भी अलग से निकालना. तो ये पहला इक्वेशन मिल गया. अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं. सेकंड कंडीशन जो आपको दी गई है इक्वेशन में, दैट इज फॉर आफ्टर 3 years. So I am writing over here after
3 years, ठीक है। आफ्ताब की एज कितनी बन जाएगी, अभी कितनी एज है उसकी, अभी के लिए डू नॉट कंसिडर दिस, जो हमने रेफरेंस के लिए माना है वो मानना है। अभी की एज कितनी है x, तो आफ्ताब्स एज आफ्टर 3 years क्या करते हैं हम, आफ्टर होगा तो ऐड करते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी x प्रेजेंट प्लस 3 years. Similarly we are going to see for the daughter's age is y plus 3 years. Any problem? Let's see what is the condition which is given for this particular condition, that is after 3 years. After 3 years he has said I shall be 3 times as old as you will be. मतलब 3 साल बाद आफ्ताब की एज अपनी बच्ची या फिर अपनी बेटी की एज के कितने होने वाला है, 3 टाइम्स. सो आई एम राइटिंग हियर a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ d. व्हाट इज आफ्ताब्स एज आफ्टर 3 years? इट इज x plus 3. तो आई एम राइटिंग दैट x plus 3 is equal to 3 times of y plus 3. So I am going to solve this again like this only. So x plus 3 as it is equal to 3 into y is 3y plus 3 into 3 is 9. Again, as that of previous question, we are going to take variables on one side and constants on one side. So this 3 will go over there and 3y will come over here. So x as it is 3y while coming over here minus 3y is equal to this 9 would be as it is and plus 3 while going over there minus 3. So x, I am writing here x minus 3y, 9 minus 3 6 is equal to 6. This is your सेकंड इक्वेशन. ये हो गया आपका हाफ पार्ट. हाफ पार्ट जो आपको बोला गया था कि अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो गिवन इंफॉर्मेशन को, वो हमने कर दिया. पहली कंडीशन को हमने जब अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है तो हमें इक्वेशन क्या मिला, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. जब सेकंड कंडीशन को हमें अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करा विच हैज़ कम एज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? नाउ व्हेन वी आर हैविंग टू इक्वेशंस वी नो हाउ टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन ग्राफिकली. उसके लिए कल ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में मैंने एक्सप्लेन करा था. आई एम टेलिंग यू अगेन व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस. फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस इक्वेशन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस दिस y इन टर्म्स ऑफ x. मतलब y को अकेला बनाना है और x का. अब यहाँ पे देखो ये y क्या है हमारे पास -7 है, तो माइनस तो चलेगा नहीं, इसके लिए हम उसको शिफ्ट करें. अगर ये पॉजिटिव होता था तो उसको यहीं पे रखते थे और x को भेज देते थे, बिकॉज वी वांट द वैल्यू फॉर y. बट y यहाँ पे निगेटिव है, इसके लिए हम y को शिफ्ट करें. अगर समझो यहाँ पे x प्लस 7y होता था तो हम 7y प्लस है ना तो उसको यहीं पे रखते थे और x को वहाँ पे भेज देते थे, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले. बट यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज निगेटिव. दैट्स वाई व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस -7y ओवर हियर. ऑब्वियसली -7y यहाँ पे जाएगा तो उस साइड में जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. सो x एज इट इज रहेगा -42 व्हाइल कमिंग ओवर हियर इट विल बी +42 इज इक्वल टू ये -7y यहाँ पर जाके +7y. ठीक है, अब मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ. पहले 7y को यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम एग्जैक्ट उसी को लिख रहा हूँ. 7y इज इक्वल टू x प्लस 42. सिर्फ LHS RHS में लिख लिया. ठीक है, अब 7y, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, मुझे y को लिखना है वहाँ पे, तो 7 वहाँ पे भेज दो. 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाने के बाद डिवाइड, तो y इज इक्वल टू x प्लस 42 अपॉन 7. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन के लिए y को हमने x के टर्म्स में लिख लिया, विच इज दैट y इज इक्वल टू x प्लस 42 अपॉन 7. लेट्स सी हाउ टू एक्सप्रेस द सेकंड वन नाउ. इट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. मैंने बोला था आप लोगों को व्हाट वी हैव टू डू, वी वांट y एज अ पॉजिटिव एंड y को x के टर्म्स में. यहाँ पे देखो क्या है वो -3y, माइनस है, अगर प्लस होता तो यहीं पे रखते थे और x को भेज देते थे. बट अभी हम क्या करने वाले, y को वहाँ पे भेज देंगे, मतलब पूरा का पूरा 3y एंड 6 यहाँ पे लेके आएंगे. सो x वुड बी एज इट इज दिस 6 व्हाइल कमिंग ओवर हियर -6 इज इक्वल टू 3y वहाँ पे जाने के बाद +3y. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? अब फिर से 3y पहले लिख रहा हूँ मैं, x माइनस 6 बाद में लिख रहा हूँ. 3y इज इक्वल टू x माइनस 6. अब ये 3 मल्टीप्लीकेशन में, वहाँ पे जाने के बाद डिवीजन में, तो y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y फॉर द सेकंड इक्वेशन. ये देखो, ये पहला वाला रिलेशनशिप मिल गया. पहले इक्वेशन के लिए y को x के टर्म्स में लिख लिया, विच इज y इज इक्वल टू x प्लस 42 अपॉन 7. एंड सेकंड इक्वेशन के लिए हमने y को x के टर्म्स में लिखा है, जो आया है वो y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3. अब जब ये से हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्राई टू रिकॉल, यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन 9th स्टैंडर्ड. ये दो रिलेशनशिप्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं उसके लिए, प्लीज़ ट्राई टू थिंक.
Now we will start with the next step of the graphical solution. We have got the relationships between the x and y for two different equations. First relationship was y is equal to x plus 42 upon 7. As I have already told you, the first coordinate which we are going to find, try to make at least one of them as 0. That means at least x as 0 और y as 0. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x 0 पुट करके देखता हूँ मुझे y वोल में मिल रहेगा नहीं. ट्राई टू गेट द कोऑर्डिनेट्स इन वोल बिकॉज इट इज ईजियर टू प्लॉट द पॉइंट्स व्हेन दे आर इन वोल. जो डेसिमल्स में आ जाते हैं, फ्रैक्शंस में आ जाते हैं, उनको प्लॉट करना डिफिकल्ट जाता है. तो ट्राई करो कि वोल इंटीजर्स नंबर्स आपको मिले. मोस्टली वोल नंबर नेगेटिव भी आपको डिफिकल्ट जाएंगे प्लॉट करने में. अब यहाँ पे x प्लस 42, x को 0 बना देते. 0 प्लस 42 क्या बन जाएगा 42. 42 अपॉन 7 इज अ होल नंबर. दैट मीन्स x की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं. सो आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ x एज 0. फिर से ध्यान दो यहाँ पे, इफ आई टेक वैल्यू ऑफ x एज 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 42 अपॉन 7. तो 0 प्लस 42 इज 42. 42 अपॉन 7 इज नथिंग बट 6. तो y वुड बी 6. दैट मीन्स जब x की वैल्यू 0 तो y कितना आ रहा है 6. तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिया 0 एंड 6. ठीक है. ट्राई टू गो फॉर पॉजिटिव्स ओनली फॉर नाउ. तो 0 के बाद अगली कौन सी वैल्यू ली. समझो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया. 1 प्लस 42 43 बन जाएगा. डिविजिबल नहीं है. 2 लिया तो वो भी नहीं रहेगा. तो कॉमन सेंस है, आई हैव टू ऐड 7 टू 42 देन ओनली आई विल गेट इट इन द मल्टीप्लिकेशन. तो x की जगह पे क्या लेना चाहिए 7. अगर 7 लूंगा मैं तो 7 प्लस 42 49 बनेगा. 49 अपॉन 7 वुड बी 7. तो x की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ यहाँ पे 7 ले रहा हूँ. x वुड बी 7. तो 7 प्लस 49 42 49 49 अपॉन 7 इज 7. मतलब y भी उस टाइम पे क्या आ रहा है 7 ही आ रहा है. 2 पॉइंट्स जनरली सफिशिएंट होते हैं इफ़ यू हैव डन योर कैलकुलेशन पार्ट करेक्ट. अगर आप लोगों को डाउट है या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कैलकुलेशन पार्ट गलत हो सकता है तो ट्राई टू गो फॉर द थर्ड पॉइंट. जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. अभी देखो 0 7 ले लिया. नेक्स्ट कौन होगा 14. 14 प्लस 42 बनेगा 56. 56 अपॉन 7 वुड बी 8. तो ये पॉइंट पहला अगर ये 14 मान लिया तो ये क्या आने वाला है 8. तो ये पॉइंट आ गया 7 7 और ये आ गया 14 एंड 8. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ. ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए ये हम क्या करने वाले ग्राफ में प्लॉट करके देने वाले. आपको ग्राफ में प्लॉट करके भी मैं आंसर कैसे आ रहा है वो भी बता देने वाला हूँ. नो इश्यूज़. अब सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं. y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3. जैसे कि मैं बोला था आइदर वन ऑफ देम ट्राई टू गेट इट एट 0. दोनों में से कोई एक 0. समझो लास्ट टाइम हमने x लिया था ना, यहाँ पे भी x 0 लेते हैं. अगर x 0 लिया 0 माइनस 6 कितना बनेगा माइनस 6 अपॉन 3 कितना बन जाएगा -2. दैट मीन्स निगेटिव आएगा y का आंसर जो हमें नहीं चलेगा. मतलब x की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हम x की वैल्यू 0. अब हम क्या करने वाले हम y की वैल्यू 0 लाने की कोशिश करते हैं. y की वैल्यू 0 लाने के लिए x की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम. x को अगर हमने 6 ले लिया, समझो x को अगर 6 लिया 6 माइनस 6 क्या बन जाएगा 0. मतलब y की वैल्यू 0 आ रही है. तो x की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू 6 लोगे तो y की वैल्यू 0 आ रही है. मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें एटलीस्ट x और y दोनों में से आइदर और दोनों में से कोई एक 0 आना चाहिए. तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते. प्रीवियस इसमें ले सकते थे, इसमें नहीं ले सकते. x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते. इसके लिए हमने क्या कोशिश की यहाँ पे कि y की वैल्यू 0 आए. तो कैसे आ सकती है जब हम x की वैल्यू 6 ले रहे हैं. 6 माइनस 6 दैट इज 0. 0 अपॉन 3 इज 0. तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है. तो आई एम राइटिंग 6 एंड 0. अब नेक्स्ट ऑब्वियस चीज़ है यहाँ पे 3 के मल्टीप्लिकेशन में चाहिए. तो x का नेक्स्ट क्या रहेगा द नंबर विच इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ऑल्सो. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 रहेगा तो ही 6 माइनस होकर 3 का मिले. तो नेक्स्ट कौन है 6 के बाद कौन होगा आगे 9. क्योंकि 9 में से 6 गए. यहाँ पे देखो 9 में से 6 गए तो 3 बचे 3 अपॉन 3 इज 1. तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वुड बी 9 बिकॉज 9 माइनस 6 इज 3. 3 अपॉन 3 इज 1. तो आई एम राइटिंग 9 एंड 1. इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट वी कैन ऐड इट. नो इश्यूज़. 2 पॉइंट सफिशिएंट होते मैंने आपको पहले ही बोला है बट कैलकुलेशन पार्ट कंफर्म करने के लिए. तो 6 हो गया 9 हो गया. नेक्स्ट क्या होगा 12. अगर मैंने 12 लिया x की वैल्यू अगर मैंने 12 ले ली तो 12 माइनस 6 बचते 6 अपॉन 3 इज नथिंग बट 2. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट 9 1 एंड 12 2. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ. So these are the coordinates and for the different equations. This is the first equation, this is the second equation. दोनों के लिए हमने अलग से coordinates find कर लिए. Any problem? Please see it at once. If you are having any doubt, please ask me. Now, the points which we have got, we have plotted it on the graph paper as follows. Previously, I have done it by using the simple scale because the coordinates were 6, 9, 12, 14.
तो मैंने क्या किया था, नॉर्मल 1 2 3 4, ये देखो ये जो स्केल दिख रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10 20 लिया था, यहाँ पे भी वैसे लिया था. बट दिस इक्वेशंस और दिस लाइन्स वर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. ठीक है, वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही थी. तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रेड्यूस द स्केल. मैंने ग्राफ रेड्यूस कर दिया, स्केल बढ़ा दिया, मैंने ग्राफ को रेड्यूस कर दिया. मैंने क्या किया, पहले 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट था, मतलब 1 2 3 4 5 लिखा था. अब मैंने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट. वाई? बिकॉज जब मैं 1 2 3 4 ले रहा था तब मेरा आंसर नहीं मिल रहा था. द लाइन्स वर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. दे वर इंटरसेक्टिंग बट दे वर इंटरसेक्टिंग फार अवे. इस ग्राफ से बाहर कहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रही थी, मतलब मुझे आंसर नहीं मिल रहा था. इसके लिए मैंने उसका स्केलिंग कम कर दिया. स्केलिंग क्या किया मैंने, 1 सेंटीमीटर का 5 यूनिट्स कर दिया, तो वो ग्राफ क्या होगा छोटा. तो मैंने क्या किया, 5 10 15 5 ले लिया है. अब जो पॉइंट्स थे मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा, पहले इक्वेशन से मिले हुए तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दूंगा. 0 6 7 7 14 0. यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो, ये 0 6, ये 7 7 और ये 14 0. ये पॉइंट्स मैंने 14 एंड ये 8 है, सॉरी ये 14 0 नहीं है, 14 8 है आई गेस. सॉरी आई हैव रिटन रॉन्ग बट आई हैव प्लॉटेड इट करेक्टली. तो दिस इज 0 6 7 1 एंड 14 8. तो इन तीनों में से पास होने वाली मैंने लाइन ड्रॉ करी है एंड इट इज़ रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन x माइनस 7 y इज इक्वल टू माइनस 4. सेकंड इक्वेशन से जो हमें मिला थे पॉइंट्स वो थे 6 0 9 1 12 2. थोड़ा क्रिटिकल है तो ठीक से पॉइंट प्लॉट करो. ये पहला जो दिख रहा है आपको, 5 के आगे 2 यूनिट्स छोड़ने के बाद 6 मिल रहा है, बिकॉज आपने ये पूरा का पूरा ये 5 to 10 वाला 10 यहाँ पे कितने यूनिट्स, 10. 5 to 10 में 5 होते हैं, मतलब हर 2 यूनिट्स बाद कितना होने वाला, 1. 2 यूनिट्स के बाद 6, 2 यूनिट्स के बाद 7, 2 यूनिट्स के बाद 8, 2 यूनिट्स के बाद 9 एंड टोटल 10 यूनिट्स के बाद 10 आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज 6 0, देन दिस इज 9 1 एंड दिस इज 12 2. ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट करें. इन तीनों में से पास होने वाली निकाली और ये दोनों लाइंस मतलब दोनों इक्वेशन जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वो उनका सोल्यूशन होने वाला है. तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर नीचे आओगे आप तो इट विल बी इंटरसेक्टिंग. आई एम मार्किंग इट फॉर यू. इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट विच कैन बी सीन. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. तो अगर आप ये पॉइंट देखोगे ठीक से तो दिस इज़ 4 यूनिट्स. यहाँ से 4 यूनिट्स पे मतलब कितना हो जाएगा, 42. और यहाँ पे देखोगे मैं माँ के यहाँ से भी 4 यूनिट्स से मतलब 12. तो ये पॉइंट जो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने वाले हैं, 42 एंड 12. प्लीज़ एक बार ठीक से देख लो. और मैंने यहाँ पे बोला भी है कि 1 सेंटीमीटर 5 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स को कंसिडर किया बिकॉज ऑफ गेटिंग द आंसर. हमें आंसर्स चाहिए था इसके लिए हमने दिया. एक बार ठीक से देख लो. अगर आप अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क. यहाँ पे XY लिखना रहेगा मुझसे, दैट आई एम मेंशनिंग अगेन YX, दैट्स इट. एक बार देख लो. हाँ, one more thing, I'm not having the pencil, I'm not carrying the pencil, that's why I have drawn this by using pen. But you people are strictly supposed to draw the graph by using the pencil only. ठीक है, do not write anything on the graph by using the pen. Strictly pencils are. So now by using the graph we have got the point of intersection as 42 and 12. तो 42 किसका आंसर होगा, x का, एंड 12 किसका होने वाला है, y का. मतलब x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल, x इज इक्वल टू 42 एंड y इज इक्वल टू 12. x हमने क्या माना था, आफ्ताब की एज. हेंस प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज 42 ईयर्स एंड y कितना आया, 12. y किसको माना था हमने, डॉटर की एज. द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज 12. यू कैन क्रॉस चेक द आंसर्स ऑल्सो. एक जो कंडीशन दी गई है उनमें से वो कंडीशन अप्लाई करके देखता हूँ मेरे आंसर सही है कि नहीं. सेकंड कंडीशन उन्होंने दी थी 3 साल बाद उनकी उम्र एक दूसरे के 3 टाइम्स होने वाली. 3 साल बाद, अभी 42 है, 3 साल बाद कितना होगा, 45. 12 है अभी, 3 साल बाद 15, मतलब 45 एंड 15 एक दूसरे के 3 टाइम्स में आते हैं. 15 3 45, मतलब हमने जो आंसर्स फाइंड किए those are correct. This way you are supposed to write this down. देख लो एक बार. Now the second question we are going to start with. Exercise 3.1 का second question solve कर रहे हैं हम. It is given that the coach of the cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900, that is 3900. Later she buys, wait a minute, I need to see. They have said the coach of the cricket team buy 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls for the same kind for rupees 1300. Represent the situation algebraically and graphically. इसको graphically and algebraically represent करना है. यहाँ पे 2 चीज़ें वो खरीद रहे हैं. वन इज़ बैट, अदर इज़ बॉल. उनका कॉस्ट हमें पता है क्या, नहीं. तो हम क्या करेंगे, उनके कॉस्ट को कुछ तो मान लेते हैं. तो लेट the cost or the price of
बैट बी रुपीज़ एक्स एंड बॉल बी रुपीज़ वाई। ठीक है, बैट की कॉस्ट x मान ली और बॉल की कॉस्ट y मान ली। पहली कंडीशन क्या है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब यहाँ पे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो यहाँ पे, बट मैं आपको समझे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक से लिख के दे रहा हूँ। 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स अगर एक साथ ले रहे हो तो द कॉस्ट वुड बी 3900। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द बैट x, तो आई एम राइटिंग 3x प्लस व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द y, so 6y इज इक्वल टू 3900। इसको मैं दे देता हूँ एक नंबर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली द सेकंड कंडीशन विच इज गिवन टू यू, दे हैव सेड लेटर शी बाइज अनदर बैट मतलब एक बैट एंड 3 मोर बॉल्स मतलब 1 बैट प्लस 3 बॉल्स फॉर द प्राइज ऑफ 1300, राइट। सो आई एम राइटिंग 1x मतलब 1 बैट मतलब 1x मतलब x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब लास्ट टाइम जैसे इक्वेशंस मिले थे वैसे हमने यहाँ पे इक्वेशंस मिला लिए हैं। ठीक है, अब हर इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, हम क्या करेंगे उसको y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो पहला इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ विच इज़ 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब यहाँ पे देखो चाहिए तो सेकंड में लिख लेता हूँ यहीं पे, विच इज़ x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब देखो यहाँ पे 3x प्लस 6y इज इक्वल 3900। हम क्या करते हैं, y को अकेला बनाते। लास्ट टाइम y का कोऑर्डिनेट 0 था, कोएफिशिएंट 0 था, इसके लिए हमने उसको शिफ्ट किया था। यहाँ पे y पॉजिटिव है तो इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमें 3x को वहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ पे कौन बचेगा, 6y इज इक्वल टू 3900। 3x यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस 3x। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ दिस 6 इज इन मल्टीप्लीकेशन, 6 मल्टीप्लीकेशन में, वहाँ पे जाने के बाद डिवीजन में। तो y का रिलेशन क्या आ जाएगा, 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 6। इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड दिस टू गेट द कोऑर्डिनेट्स। चाहिए तो यहीं पे सॉल्व करके लेंगे, मतलब आपको समझने में ईजी जाएगा। सेम वी आर गोइंग टू डू फॉर द सेकंड इक्वेशन। इसमें 3y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो y को शिफ्ट करना नहीं है, x को शिफ्ट करो। तो 3y एज इट इज़ बचेगा, वहाँ पे हो जाएगा 1300 माइनस x। नाउ दिस 3y, 3 is in multiplication, while going over there it will be division. So y is equal to 1300 minus x upon what, 3. This is the second relationship. Any problem? अब ये रिलेशनशिप्स यूज़ करके हमें क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो हम यहीं पे फाइंड करने वाले हैं। मैं पहले टेबल ड्रॉ करके लेता हूँ जो हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स के लिए निकालना है, देन वी विल सी हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, now we are having the relation and we will try to solve this question. What is given there, we will try to see. It is given as y is equal to 3900 minus 3x upon 6. सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं, एक तो x को 0 नहीं तो y को 0। तो x को अगर 0 मान लिया तो ये 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, 3900 upon 6. Is it divisible? 6 6 no, yes it is divisible, right? So if you take the value of x as a 0, y की वैल्यू हमें मिल रही है, तो x की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ। एंड इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज अ 0 तो यहाँ पे बचेगा 3900 और 6 से डिवीजन दिया, 6 6 36 बचे 30, 6 5 एंड ऊपर वाला 0। तो y की वैल्यू कितनी आने वाली, 650। x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे 650। अब नेक्स्ट जो कंडीशन हम ट्राई करेंगे, x की वैल्यू सच दैट लेंगे कि ये वाला नंबर 6 के मल्टीप्लिकेशन आएगा, 6 के मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है। तो इसके पहले कौन सा नंबर है, इट इज़ 3600, राइट, 3600। तो 3600 कब आएगा, इसमें से 300 माइनस करने के बाद। तो ये क्या चाहिए हमें, 300। ये 300 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 100 होगी। तो x की वैल्यू 100 ले रहा हूँ मैं, तो 100 इंटू 3 इज़ 300। 3900 में से 300 का बचे 3600। 3600 अपॉन 6 इज़ नथिंग बट 6। 3600 अपॉन 6 इज़ नथिंग बट 360। एनी प्रॉब्लम? Am I correct? So this is a correction of the calculation. 3600 upon 6 is nothing but 600. ठीक है, क्या आंसर आ गया आपका 600। मतलब कोऑर्डिनेट्स पहला क्या मिला 0 650 एंड सेकंड क्या मिला 100 एंड 600। ठीक है, सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द सेकंड वन। सेकंड वन आप ठीक से देखोगे 1300 माइनस x अपॉन 3, इट इज़ क्वाइट ईजी। 3 के मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा, इसके आसपास माइनस है तो इसके पहले एक है 1200। तो 1200 कैसे लाओगे, x को हम क्या बनाएंगे, x को 100 बनाएंगे। x को अगर 100 लिखा तो ये क्या आएगा 1200 बन जाएगा। तो x को मैं 100 ले रहा हूँ,
सो 1300 माइनस 100 1200, 1200 अपॉन 3 कितना बन जाएगा 400। अब 1300 का नेक्स्ट प्रीवियस वाला मल्टीप्लिकेशन कौन सा है? अभी 1200 देखा था हमने, 1200 के पहले कौन सा है 900। 900 कैसे लाओगे? x को अगर 400 माना तो 1300 माइनस 400 कितना बन जाएगा 900। तो x को मान लेता हूँ मैं 400 और ये 900 बन जाएगा, 900 अपॉन 3 कितना बन जाएगा 300। सो कोऑर्डिनेट्स वुड बी 100 400 एंड दिस इज़ 400 एंड 300। मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे सेपरेटली लिख के दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स। पहले के लिए कोऑर्डिनेट्स कितना आया 0 650 एंड सेकंड कितना आया 100 600, ये सॉरी 100 600। और सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास कौन आया 100 400 एंड सेकंड वुड बी 400 एंड 300। अब ग्राफ पेपर के कंसिडरेबल स्केल लेके, फिजिबल स्केल लेके आपको सॉल्व करना है। आई विल सजेस्ट यू टू टेक द स्केल एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100। ये क्या दिया है उन्होंने, रुपीज़ है ना ये वाले कोऑर्डिनेट्स, तो उसको यूनिट्स मान लेते, तब ये 650 100 400 एवरीथिंग वुड बी पॉसिबल टू प्लॉट। अगर आप लोगों ने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स भी लिया तो भी ठीक है, बट दिस इज़ बेटर। ये 50 यूनिट्स वाला ज़्यादा बड़ा ग्राफ हो जाएगा, आपको बहुत लेंथी निकालना पड़ेगा। सो 1 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स लिया तो भी चलने वाला है। ये पॉइंट्स प्लॉट करके लाइंस ड्रॉ करो और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होने वाला है आपका x और y की वैल्यू। एक बार ठीक से देख लो। होपफुली यू हैव डन विद द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। आपने जो सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था द क्रिकेट टीम वाला, उसके x और y के वैल्यूज़ फाइंड कर लिए होंगे, उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। एक्सरसाइज 3.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ प्योरली होमवर्क फॉर यू, एंड जैसे कि आपको बोला गया द क्लास वर्क एंड होमवर्क बोथ द नोटबुक्स यू आर सपोज टू कैरी। क्लास वर्क में जो हमने यहाँ पे कवर करके लिए दोज क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व, एंड इन द homework notebook each and every question of exercise 3.1 should be solved in on both graph paper and the textbook। तो ठीक से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। थैंक यू सो मच।